Everybody, welcome to Unacademy. Hi everyone, I'm Mani Mehra and I welcome you to this session where we are going to discuss about virus or biological weapon. Recently, we have been seeing the rise of a pandemic in the entire world of the novel coronavirus or COVID-19. This virus has posed a lot of questions for everybody across the globe. But today I'm going to talk about a topic which might bring some focus on the areas that we need to have right now, and also it will help us to infer the meaning of bioterrorism and how the COVID-19 can be related to something called as biological weapon. Bioterrorism is not a new word. It covers a very broad spectrum of concerns, from catastrophic terrorism with mass casualties to micro events using low technology but producing civil unrest, disruption, disease, disabilities, and death. The threat of bioterrorism, long ignored and denied, has heightened over the past few years. The international terrorist attacks are changing over the past towards the use of more deadly weapons for massive civil disruption. Today, many countries are possessed, pursued, or capable of acquiring weapons. In contrast of assessing functional, chemical, radiological, or nuclear materials, biological materials are produced very easily. We all are ill prepared to deal with a terrorist attack that employs biological weapons. This is not a new thing because it was done in response to the nuclear threat. The medical community should educate the people, the public, and the policymakers about the threat. In the longer term, we need to be prepared to detect, diagnose, characterize epidemiologically, and respond appropriately to biological weapons use and the threat of new and re-emerging infections. On the immediate horizon, we cannot delay the development and implementation of strategic plans for coping with civilian bioterrorism. So, what are these biological weapons? They are complex systems that disseminate disease causing organisms or toxins to harm or kill humans, animals, or plants. It's not only about humans, it can also kill animals and plants. They generally consist of two parts: a weaponized agent and a delivery mechanism. Almost any disease causing organism, let's say bacteria, viruses, fungi, prions, or rickettsiae, or any toxin like poisons which are derived from animals, plants, microorganisms, or similar substances produced synthetically, they can be used in biological weapons. इन्हें बनाने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का, प्रायन का, या कोई भी पॉइजन जो एनिमल से या प्लांट से डिराइव की जा सकती है in the form of microorganisms. The agents can be enhanced from their natural state. उनकी नेचुरल स्टेट से उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी में भी बदला जा सकता है. They can be more suitable for mass production, storage and dissemination as weapons. हो सकता है शायद आज हमें गोली बारूद की ज़रूरत ना हो या न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत ना हो, बट ये बायोलॉजिकल वेपन्स काफ़ी होते हैं बहुत सारी तादाद में लोगों को मारने के लिए. Historical biological weapon programs have included efforts to produce aflatoxin
anthrax, botulinum toxin, foot and mouth disease, glanders, plague, Q fever, rice blast, ricin, Rocky Mountain spotted fever, smallpox and tularemia among others. इंडिया ने ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों से अपनी जीत हासिल की है, जैसे स्मॉल पॉक्स। ये भी एक तरह का हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो एक एजेंट की तरह इन्होंने काम किया है, जहाँ पे ये बायोलॉजिकल वेपन्स ने बहुत लोगों को बहुत तादाद में मारा है। इन्हें क्लासिफाई करने का तरीका क्या है? इसे क्लासिफाई करने के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बायोलॉजिकल एजेंट्स और डिजीजेस को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैटेगरी ए वो एजेंट्स है जो सबसे ज़्यादा तादाद में हाईएस्ट प्रायोरिटी एरियाज है, और ये डिजीज एजेंट्स है। ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा हमला कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि आज हम जो नोवल कोरोना वायरस देख रहे हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो इससे हाई मोर्टालिटी रेट, बहुत ज़्यादा तादाद में मृत्यु होना, हाई पोटेंशियल टू कॉज सोशल डिस्ट्रप्शन। आज सोसाइटी के अंदर लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सोशल डिस्ट्रप्शन कर दी है। ये डिजीजेस ऐसे एजेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, बट दे कुड बी मैनिपुलेटेड टू मेक देम मोर डेंजरस। इन्हें मैनिपुलेट के इतना डेंजरस बनाया जा सकता है कि बहुत तादाद में लोगों की मौत हो सके। जैसे कि आज चाइना में वुहान से ये स्टार्ट हुआ वायरस, पूरी विश्व में फैल चुका है। कैटेगरी बी वो एजेंट्स है जो मॉडरेटली इजी टू डिसेमिनेट है और दे रिजल्ट इन लो मोर्टालिटी। इनसे इतनी मृत्यु नहीं होती। इनके अंदर आते हैं ब्रूसलोसिस, ग्लैंडर्स, क्यू फीवर, रिसिन टॉक्सिन, टाइफस फीवर एंड अदर एजेंट्स। इससे लोग बीमार पड़ते हैं बट ठीक भी हो जाते हैं। कैटेगरी सी ऐसे एजेंट्स इंक्लूड करते हैं जो इमर्ज करते हैं डिजीज एजेंट्स की तरह, और ये इंजीनियर हो सकते हैं फॉर मास डिसेमिनेशन इन द फ्यूचर, जैसे निपा वायरस। निपा वायरस भी आया था। हमने ऐसी छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है, एबोला वायरस, निपा वायरस, जीका वायरस, बट द पॉइंट इज कि इन लोगों को इन सब तरह के वायरसेस को कंट्रोल कर लिया जा चुका है। बट कोरोना वायरस एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा पेंडेमिक है जिसे कंट्रोल करने के लिए अभी गवर्नमेंट के पास कोई भी एकमात्र वैक्सीनेशन नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग आज अपने घरों से उठ के आज अपने घरों में बैठ रहे हैं। बट बहुत से लोग जो अपने घरों से माइग्रेट होकर शहरों में आए थे, वो रिवर्स माइग्रेशन के प्रोसेस के तहत वापस अपने गांव और अपनी सब जगहों पे वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वह भूखमरी से मरना नहीं चाहते। हिंदुस्तान, जहाँ की आबादी, जहाँ की पॉपुलेशन पूरे विश्व में एक काफ़ी अच्छी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारे देश की है, इसके आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन डेली वेज वर्कर्स की है। ऐसे वायरसेस बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह काम करते हैं, जहाँ किसी न्यूक्लियर बॉम्ब या किसी और की ज़रूरत नहीं है लोगों को मारने के लिए। केवल एक वायरस ही बहुत है इतने बड़े विश्व में लोगों को घरों पे बिठाकर इन्फेक्ट करने के लिए, और अगर लोग इन्फेक्ट हो गए हैं तो बहुत तादाद में उनकी मृत्यु होने के लिए। आज कोरोना वायरस के कारण डेथ रेट, जो मोर्टालिटी रेट है, वो बहुत इंक्रीज हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसे हम बायोलॉजिकल वेपन नहीं तो और क्या कहेंगे। टारगेट्स कौन होते हैं बायोटेररिज्म के? देखिए, बायोटेररिज्म दे हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। मोस्ट ऑफ द बायो वेपन्स दे आर रिलेटिवली ईजी टू जनरेट। इन्हें बनाना आसान है, इनएक्सपेंसिव है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन while using small quantities by simple means। किसी एक इंसान को इन्फेक्ट किया और उसके बाद आगे वो जिससे मिला उसने और 4 लोगों को इन्फेक्ट किया, और वो 4 लोग आगे जिस 4 लोगों से मिले उन्होंने आगे और 8 लोगों को इन्फेक्ट किया, तो इसका रेट मल्टीप्लाई होता है। पोटेंशियल टारगेट्स फॉर बायो वेपन्स आर वाटर सप्लाईज एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स।
as it is a critical need of every ecosystem health and also to the smooth functioning of commercial and economy sector of our industrialized society. आज एक बात सोचिए, अगर बायोलॉजिकल वेपन को पानी को इन्फेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरे विश्व के अंदर जो भी हम पानी पी रहे हैं, जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर पानी ही बायोलॉजिकल वेपन का शिकार बन जाए तो पूरी की पूरी आबादी, पूरे के पूरे विश्व को, संसार को ख़त्म करने के लिए वो बहुत होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक परफेक्ट टारगेट बनता है बायो टेररिज्म का, जो यूज करते हैं हाईली कंटेजियस, वायरुलेंट एंड रेजिस्टेंट एजेंट्स विच रिजल्ट इन इकोनॉमिक हार्डशिप ऑन कंट्रीज। In addition, animals, plants and birds, they could also be targeted for biological threat generation. इन्हें भी threat generation के लिए यूज किया जा सकता है। अभी तक ये चीज सामने नहीं आ पाई है कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली कहां से और क्यों फैला। कोई कहता है कि ये बैट से फैला है, कोई कहता है कि ये स्नेक से फैला है। अलग अलग तरह की जो थ्योरीज है वो सामने आ रही है, बट द पॉइंट इज कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे पूरे विश्व में अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड कर रही है और सारा डाटा प्रोवाइड कर रही है कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कहती है कि 80% ऑफ पैथोजन यूज फॉर बायो वॉरफेयर आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। 80% जो है वो एनिमल से बनाए जाते हैं, या उनके बैक्टीरिया या उनकी बॉडी से वायरसेस को लेकर 80% से भी ज़्यादा ये जो बायो वॉरफेयर के वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, वो एनिमल ओरिजिन होते हैं। एंड 60% इज ह्यूमन पैथोजेनिक आर जूनोटिक। फर्दरमोर उनका ये भी कहना है दैट एनिमल फॉरेन एजेंट्स जैसे फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, बैसिलस एंथ्रासिस, अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस, these are readily available in the nature. ये ऑलरेडी नेचर में है, and they also from commercial sources which require little effort in handling and dispersing these pathogens. तो इनको फैलाने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निक की जरूरत नहीं है। तो कोरोना वायरस क्या एक वायरस है कि बायोलॉजिकल वेपन है? अगर यूएसए आज खड़े होकर बोल रहा है दैट चाइना ने पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में नहीं बताया और पूरे विश्व में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाई कि ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट लेकर आ सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑन एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट, तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात ये पूछने वाली है, अगर ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, अगर ये एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में फैलता है, तो आज बीजिंग के अंदर ये क्यों नहीं फैला, या चाइना की और जगहों पे ये क्यों नहीं फैला? सिर्फ वुहान ही उसका सेंटर क्यों बना है? और वुहान के बाद वेस्टर्न कंट्री से होते होते आज ये इंडिया में आ चुका है। हमारे देश में जो लोग काम करते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका दिनचर्या या जिनकी डेली रोजी रोटी, जिनका डेली जो आमदन है वो हम लोगों के सिर पे है या हम लोगों के थ्रू चलती है, क्योंकि हम उनसे काम लेते हैं अलग अलग तरह के। आज वो सब के सब अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको सर्वाइवल इश्यूज हो रहे हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज दे विल स्टार्व अंटिल डेथ। सो द पॉइंट इज दैट इज ह्यूमैनिटी टर्निंग सो वर्स that now instead of using guns and other weapons, they have started using biological weapons in order to increase the mortality rate and kill humanity at a larger pace. So guys, this is me, Vani Mehra, on Unacademy. You can join my courses and other educators on Unacademy platform. You can take Unacademy Plus subscription for the UPSC Civil Services exam. And you can also use my referral code VANIYT10 in order to get a 10% discount. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जो एक तरह की मिस्ट्री है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती रहूँगी अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, and you can follow me on Unacademy. You can follow my courses on Unacademy Learning app. आप मेरा नाम सर्च कीजिए वानी मेहरा और मेरा रेफरल कोड VANIYT10 यूज़ कीजिए Unacademy Plus पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस कोर्स
this session and tell me how was the session. Thank you guys. Take care and all the best.